ہم نے بیویوں پہ ظلم کیا، یہ جرائم ہی کم نہ تھے، لیکن یہودیوں کو دیکھ کر، مشرکین کو دیکھ کر اب تو ہم نے نئے نئے مشرکین کے تہواروں کو بھی اپنا تہوار بنا لیا. کوئی 31 نائٹ بنا رہا ہے، کوئی نیو ایئر بنا رہا ہے. آخر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 31 نائٹ کا مطلب یہی تھا کہ ہم کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو لیتے کہ اللہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اگر اس میں کچھ جرائم ہو چکے ہیں تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا، تو شاید یہ رات بھی نجات کی رات بن جاتی. لیکن 31 نائٹ کو ہم نے ہندوؤں سے سیکھا، یہودیوں سے سیکھا، نصارہ سے سیکھا، مشرکین سے سیکھا. کیا ہے یہ رات؟ یہ رات 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک زنا، ایک میوزک، ایک شراب. بلکہ اگر اس کو یوں کہوں تو جسے آپ 3 شین کہہ سکتے ہیں، شراب، شباب اور شاعری. یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے 31 نائٹ. اب ان تینوں جرائم کو میں الگ الگ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ان میں سے ایک ہی جرم خدا کے غضب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے. تو ہم نے مزید اور 2 جرائم، وہ بھی ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے. اللہ اکبر، کوئی بمبئی کا سفر کر رہا ہے، کوئی گوا کا سفر کر رہا ہے، کوئی مہابلیشور کا سفر کر رہا ہے. بلکہ اب تو ہندوستان کے مسلم نوجوانوں کا حال یہ دبئی تک جاتے ہیں. 31 نائٹ سے پہلے پچھلے سالوں میں میں دبئی کے سفر پہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ شہر دبئی کو بالکل دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا. ہوٹلوں کے اندر بڑا اہتمام ہو رہا تھا. میں نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا نیا سال آنے والا ہے اور پوری دنیا کے عیاش دبئی میں جمع ہوں گے. دبئی کیا ہے؟ مسلم مملکت، اسلامی حکومت. یہ حال ہے. متحدہ عرب امارات جنہیں کہا جاتا ہے، 5 ملکوں کو جمع کر کے، اور اس کے لیے سب سے بڑی عیاش کا دبئی ہے. وہاں پر یہ سارے انتظامات ہو رہے تھے. نام نہاد سعودی حلیف، نام نہاد مسلم بادشاہ، مسلم حکمراں. ہم تو ایسے مسلم حکمرانوں پہ لعنت کرتے ہیں جو عیاشیوں کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. ارے مسلم حکمراں یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مسلم حکمراں تو وہ تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے. آج بھی ان کا نام آتا ہے تو عقیدتوں سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. جس کا حال یہ تھا، اس مسلم حکمراں کے جبے پر پیون تو لگے تھے لیکن جرائم کے دھبے نہیں تھے. ارے جس کے نام سے مجرموں کے وجود کانپ جاتے تھے، مسلم حکمراں کہلانے کا حق ان کو تھا. لیکن ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ جس وقت 1 جنوری کی صبح طلوع ہوگی تو یہاں سے بوتلوں کے ڈرم خالی ہو کر کے نکلیں گے. اس لیے کہ اتنی شراب پی جائے گی کہ آج سے پہلے پورے سال بھر میں اتنی شراب کسی رات نہیں پی گئی. اتنی لڑکیاں لائی جائے گی کہ اتنی حسیناؤں نے دبئی کی سرزمین پہ کبھی قدم نہیں رکھا ہوگا. یہ اس ملک کی داستان ہے، آپ کا ملک کبھی کم نہیں. بمبئی کے اندر لوگ اتنی شراب پیتے ہیں کہ ایک ٹیکسی والے نے مجھ سے کہا کہ 31 نائٹ میں ہم جب کسی کو بٹھاتے تو پہلے پیسہ لیتے، اس کے بعد ہم ان کو ٹیکسی میں بٹھاتے ہیں. میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا وہ اتنا شراب پی لیتے ہیں اور حسیناؤں پر اتنا پیسہ لٹا چکے رہتے ہیں کہ ان کو اپنی لاج میں جانے کے لیے ان کی جیب میں پھر پیسے نہیں رہتے. وہ ہماری ٹیکسی میں بیٹھ کر کے پھر اترتے ہیں اور دینگا کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، ہمیں پیسے نہیں دیتے. یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے. امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا لیکن انفرادی عذاب تو آئے گا. انفرادی عذاب میں یہ امت گرفتار ہو سکتی ہے. مطلقاً آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ جس طرح اور امتیں اجتماعی طور پہ ہلاک ہوئی ہے، یہ امت اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں ہوگی لیکن انفرادی طور پر یہ امت عذاب میں گرفتار کی جائے گی. اور جب میرا اللہ عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ معصوم بچے، معصوم بمانے بے گناہ، معصوم اس معنی میں نہیں جس معنی میں شیعہ کہتے ہیں، بے گناہ معصوم بچے، پھر قدرت ان کو بھی عذاب میں گرفتار کرتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم پر جب عذاب آیا اس وقت اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ بچ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی بچنے نہیں دیا. ایک ماں ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی، وہ ماں جناب نوح کی باغی تھی. جب اس کو پتا چلا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے پہاڑ کی طرف دوڑی. جب وہ پہاڑ پر چڑھی تو پہاڑ تک کے پانی کی موجیں گئی، اس کے گھٹنوں تک، اس کی کمر تک. اس نے بچے کو سینے سے اٹھا کر کے کندھے کی طرف کیا. جب کندھے تک پانی آیا تو اس نے اپنے بچے کو سر پہ بٹھایا. جب سر پہ پانی آیا تو وہ بھی ڈوبی اور اس کا بچہ بھی ڈوب گیا. اس بچے کا قصور کیا تھا؟ اس بچے کا جرم کیا تھا کہ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا؟ بچہ مجرم نہیں تھا، وہ ایک مجرم کی گود میں تھا. جس کو قدرت نے ڈبانے کا فیصلہ کیا تھا اس کی گود میں تھا، اس لیے بچہ بھی ڈبا دیا گیا. جب قدرت کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو تدبیریں بھی ناکام ہو جاتی ہیں. اللہ کی تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والوں، تمہیں پتا ہے جب قوم نوح پر عذاب کا اعلان کیا حضرت نوح نے کہ طوفان آئے گا، سب ہلاک ہوں گے سوائے ایمان والوں کے. چند نوجوان اپنے آپ کو دیر ہوشیار سمجھتے ہوئے انہوں نے نوح علیہ السلام کو منہ چڑا کر کے کہا کہ ہم تو اتنی دور جائیں گے کہ آپ کے اللہ کا عذاب وہاں تک نہیں آئے گا. اور پھر وہ لوگ نکلے، نکلنے کے بعد دور 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 اتنا دور چلے گئے کہ وہ ایک محفوظ غار میں چلے گئے. اللہ نے ان پر پیشاب مسلط کر دیا. وہ پیشاب کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنا پیشاب کیا، اتنا پیشاب کیا، اتنا پیشاب کیا کہ خود کا پیشاب گھٹنوں تک آیا، کمر تک آیا، اور اللہ نے ان کے پیشاب میں ان کو گرک کر دیا.
जब कुदरत किसी के लिए अजाब का इरादा करती है, कुदरत यूं ही किसी को अजाब में गिरफ्तार नहीं करती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह किसी से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। आज दौलत है, दौलत की बुनियाद पर मिलादुन नबी को लोग शिर्क कहते हैं, बिदात कहते हैं, लेकिन 31st नाइट के खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता। मिलाद मुस्तफा के लिए कलम चलते हैं, इसके लिए कितना कलम चल रहा है, इसके लिए कितना एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में। और मुल्क हिंदुस्तान जो बहुत जल्द माशी तौर पर सुपर पावर मुल्क बनने वाला है, उस मुल्क के अंदर इतनी नहुसत, बिलखुसूस शराब, इस रात इतनी शराब आम होगी और वो आजाद ख्याल मुस्लिम नौजवान भी जाएंगे। इस शराब क्या है पता है? शराब किसे कहते हैं? शराब उसी तरह नापाक और नजस है जैसे पेशाब नजस होता है। शराब की नापाकी और पेशाब की नापाकी दोनों इक्वल है, बराबर है। अल्लाह के रसूल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट पिया होगा और बगैर तौबा के वो मर गया होगा, तो उसकी मौत पर के बाद जब उसकी कब्र में उसे रखा जाएगा तो उसके चेहरे को सूअर की तरह कर दिया जाएगा या तो बंदर की तरह, सिर्फ एक घूंट पर। इस हदीस को इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमा रहे कि एक घूंट पर, मैं हैरान था, मैंने पढ़ा तो हैरान था, एक घूंट शराब, उस पर इतनी सख्त वईद, इतनी सख्त वईद। क्योंकि कभी कभी रिवायत और दरायत जब ये दोनों एक दूसरे के गले नहीं मिलते तो कभी कभी तबीयत में उलझन सी पैदा हो जाती है। एक घूंट शराब, इतनी वईद। जब लोगों से पता चला तो मालूम हुआ कि कोई भी बंदा अचानक शराबी नहीं बनता कि एक दिन में वो 2-4 बोतलें पी ले और शराबी बन जाए, कभी ऐसा नहीं होता। अगर गैर शराबी 1-2 बोतल एक साथ पी जाए, या तो वो मर जाएगा या तो मरने के करीब हो जाएगा। अचानक कोई शराबी नहीं बनता, बल्कि शराबी पहले आदमी एक एक घूंट पीने का आदी बनता है, उसके बाद फिर वो मुस्तकिल शराबी बनता है। कुर्बान जाएं मेरे गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों पर मेरे आका आज के हालात को भी देख रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नफ्सियात को जानते थे, इसीलिए मेरे आका ने एक घूंट शराब की मुसम्मत बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा शराब का एक घूंट पिए और तौबा करने से पहले मर जाए, याद रखें, अगर आप ये सोचते हैं हमें मौका मिलेगा तौबा कर लेंगे, हर इंसान को तौबा का मौका नहीं मिलता। अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या करोगे? आका करीम गैब दा नबी फरमाते हैं, किसी ने एक घूंट शराब का पिया, मरने के बाद उसकी कब्र में उसका चेहरा या तो सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह होगा, और जब वो कल क़यामत के दिन उठेगा तो उसको इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि उसकी ज़बान प्यास की शिद्दत की वजह से उसके सीने पे लटक रही होगी। वो पानी पानी चिल्लाएगा, वो प्यास प्यास चिल्लाएगा। उस वक्त उसका हाल ये होगा कि उसको जहन्नमियों का खौलता हुआ पी, जहन्नमी बिच्छुओं का जहर, और जो जानी जहन्नम में डाले जाएंगे उनकी शर्मगाह से निकली हुई रतूबत, ये 3 चीजें उसे पीने के लिए दी जाएगी। जब उसकी बदबू से उसका सर फटेगा और उसकी गर्मी से उसका गोश्त झड़ झड़ के गिरेगा, वो अर्ज करेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फरिश्ते कहेंगे, क्या तूने दुनिया में एक घूंट शराब का नहीं पिया था? एक घूंट शराब का ये हाल है। लोग आज की रात पानी की तरह शराब पिएंगे। अगर कोई मुसलमान उस तरफ गया तो अल्लाह मेरे उस मुसलमान भाई की हिफाजत करे। ये शराब इंसान को इस तबाही की तरफ ले जाता है, और शराब के साथ शबाब भी होगा, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों के साथ ज़िना भी होगा। आज की रात नाच की रात, आज की रात रक्स सुरूर की रात, आज की रात मौजों के बुक करवाने की रात और भरपूर ऐश करने की रात है। लेकिन मैं उनसे कह देना चाहता हूं, आप लोग तो नेक लोग हैं, आप नहीं गए तभी तो आप यहां आए हैं, लेकिन जो जाते हैं उन तक हमारा पैगाम जरूर पहुंचा दें कि बहुत दिन तक के अय्याशी का मौका नहीं मिलेगा, बहुत दिन तक के ऐश का मौका नहीं मिलेगा, बहुत दिन तक के जराइम का मौका नहीं मिलेगा। और अल्लाह अकबर, जिना वो बदतरीन जुर्म है। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जिना में मुब्तला होता है तो अल्लाह उससे ईमान को ऐसे उतार लेता है जैसे लोग अपने कपड़े उतारते हैं। जिना करने वाला जब जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। जिना करने वाला जब जिना करता है तो ईमान उसके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह साया फकन हो जाता है। और अपनी माँ बहन के लिए गैरत से काम लेने वाले भाइयों को यह पैगाम बिलखुसूस तोहफे के तौर पर देना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे गैब का नबी ने इरशाद फरमाया, हर कर्ज इंसान अपनी तबीयत और सहूलत से अदा करता है, लेकिन जिना उस कर्ज का नाम है कि तुम अपनी तबीयत से उसे अदा नहीं करते। इधर तुम जिना करते हो, जिना वो कर्ज है, इधर तुमने जिना किया, उधर फौरन वो अदा हो जाता है। यानी तूने किसी की बहन के साथ जिना किया तो तेरी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा, तूने किसी की बेटी के साथ जिना किया तो तेरी बेटी के साथ भी जिना किया जाएगा, तूने किसी की मां के साथ जिना किया तो तेरी मां के साथ भी जिना किया जाएगा। इसको मैं 2 हदीसों से मुज़य्यन करना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान आया और आने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जिना करने की इजाजत दें। आखिर किस कदर बेबाक भी लोग थे या किस कदर नादान भी लोग थे कि लोग आकर हुजूर से जिना की इजाजत भी मांग लेते थे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, ना वो नादान थे ना वो बेबाक थे, बल्कि हुजूर का करम, हुजूर अलैहिस्सलाम की इनायतें कभी कभी लोगों को माज़ अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कभी कभी लोग हुजूर के करम और हुजूर की मेहरबानियों को अल्लाहु अकबर देख करके इस तरीके की बातें भी कह जाते थे
जैसे मेरे आका की बारगाह में कहा हुजूर मुझे ज़िना करने की इजाजत है, फारूक आजम ने तलवार निकाली, फरमाया इस बदबख्त की इतनी जुरात कि ये मेरे आका के सामने ये बातें करता है। मेरे आका ने फरमाया उमर ठहरो। उसके बाद हुजूर ने उस जवान को बिठाया और बिठाने के बाद जो तीन चार कलमात कहे वो उसको बहुत गौर से सुने। आका फरमाते ऐ जवान, क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ ज़िना किया जाए? क्या तू ये पसंद करता है तेरी बहन के साथ ज़िना किया जाए? क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी बेटी और तेरी बीवी के साथ ज़िना किया जाए? वो चारों दफा कहता रहा नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं हर किसी को पसंद नहीं करता। हुजूर ने उसके सीने पे हाथ मारा और उसकी अल्लाह इसके दिल में गुनाह से नफरत पैदा कर दे। तो इस दुआ का असर ये था कि उठने से पहले पहले उसके दिल में ज़िना की नफरत पैदा हो गई। बात तो यही है, नतीजा तो यही है कि तू जिससे ज़िना करेगा वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी। जैसे तू इनके साथ ज़िना पसंद नहीं करता तो वो कैसे पसंद करेगा कि किसी की माँ के साथ ज़िना हो, बहन के साथ ज़िना हो, बेटी और बीवी के साथ ज़िना हो। हदीस से इशारतुन नस ये निकलता है, हदीस से इशारा ये मिलता है कि क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे? मतलब ये कि तू किसी की माँ के साथ करेगा तो तेरी माँ के साथ भी ज़िना होगा, तू किसी की बहन बेटी बीवी के साथ ज़िना करेगा तो तेरी बहन बेटी बीवी के साथ ज़िना होगा। आकाए करीम फरमाते हैं अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत एमल मा शैत कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी भुलाई नहीं जा सकती, गुनाह कभी पुराना नहीं हो, गुनाह नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर एक के लिए वही है जो वो करे और तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। ज़िना वो कर्ज है, तुम चाहो ना चाहो वो अदा होगा। अपनी बहन के लिए अगर दिल में गैरत है तो किसी की बहन पे नजर न उठाना, अपनी बीवी के लिए अगर गैरत है किसी की बीवी पे नजर न उठाना। तुम दूसरों को तहफ्फुज़ दोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की औरत को तहफ्फुज़ देगा। तुम किसी की आबरू की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों की आबरू की हिफाजत करेगा। और अगर तुमने किसी को पार्क में ले गए तो चाहे जितने ही पैरे बिठा दो ये कर्जा अदा होकर के रहेगा। जब ये हदीस कमा तदीन तुदान एक आलिम ने एक बादशाह के सामने पढ़ी तो बादशाह कहने लगा हजरत आप इसकी तहकीक कर लीजिए, ये हदीस नहीं हो सकती, कहीं इसमें आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हदीस है वो सच है और हक होकर रहेगी। हम तो बादशाह लोग हैं, बादशाह, हमारी बीबियां तो महलों में रहती है, पर्दों में रहती है, उनको कौन देख सकता है? इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हदीस नहीं और आपने हदीस कह दिया। उस आलिम ने साहिब दिल थे फौरन आंखें बंद करके अल्लाह से अर्ज़ की मौला हदीस की हक्कानियत इस पे जाहिर कर दे। बस ये दुआ करनी थी। बादशाह की बेटी रोते हुए महल में दाखिल हुई। जब महल के अंदर दाखिल हुई बादशाह ने पूछा क्या हुआ? बेटी ने कहा बाबा मैं दरसगाह से अपने घर आ रही थी, मेरी सहेलियां और सिपा मेरे साथ थी, उसके बावजूद भी एक नौजवान लड़का आया और उसने अपने गाल से मेरे गालों को घसना शुरू किया और वो भाग गया। बादशाह की आंखों में आंसू थे और कह रहा था सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। आलिम से कहा मैं गवाही देता हूं ये हुजूर की हदीस है। आलिम ने कहा अभी तो तुम बड़ी बातें कर रहे थे, हुआ क्या? तो कहा कि मैंने पूरी जिंदगी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अपनी जवानी में एक औरत के गालों से मैंने अपने गाल मसले थे, सो आज मुझसे वो बदला ले लिया गया। और जो पाक दामनी में जिंदगी गुजारते हैं उनके घर की औरतें भी महफूज रहती। लोग सोचते हैं कि हम जो चाहे करें, हम बिल्ली की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्ते की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्तों की तरह घर दरवाजे पर हाजिरी देते रहे और हमारे घर की औरतें महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो माफ करना। 31st नाइट में किसी लॉज में कदम रखने से पहले अपनी बहन के चेहरे का तसव्वुर भी कर लेना।